Yeah. Okay. Very good evening to all of you, beta. I'm going to start with chemical bonding. Okay. Now, the very first thing, beta, the common question comes, why elements react? Why element react? Now, look, you might have studied, element will try to attain the electronic configuration of what, beta, nearest noble gas. This is what you have studied, but this is actually not the reason. What they generally do, beta. Suppose this is the energy of, sodium, and this is sodium, and this is what, beta, chlorine. So their energy is very high, na, beta. So now what will happen, beta? If they will when they form NaCl, so Na is what? Positive and Cl is what, beta? So now their energy of the system is what? Lower. Now Na is how much? Atomic number 11. So it is how much? 281. Chlorine is how much, beta? 287. So now what will happen to sodium? It will become what? 2 comma 8. Now it has attained the electronic configuration of nearest noble gas neon, and chlorine has attained electronic configuration of what, beta? R. So now in your lower standard, they have taught you that they try to attain the electronic configuration of the nearest noble gas. But the main reason is what we know, their energy will be lower. Their energy will be low. Okay. Now we are going to do the bond formation. We are going to do bond formation. Now, before doing bond formation, you should know the electronic configuration of first 20 elements. What are the first 20 elements? You all know. Hi, hello, live BBC News on Friday night. ना मांगू अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला एंड काजू केक. Clear? Hello. Look here. Now all elements want to become like their what nearest noble gas. In order to become like nearest noble gas, what they will do, beta? They will gain electron or they will lose. Right? Lose. Or they may share also. Now who's the nearest noble gas to sodium? Come on, tell me. Neon. So it will try to become like neon. So in order to become like neon, what it will do? It will lose one electron. It will lose an electron. Okay, now chlorine, can you see 287? It will try to become like what? Argon. So it will what? Gain one. Now tell me magnesium. If magnesium will react, then how many electron it want to lose? Magnesium or calcium? They will lose how many electron? Two. Yeah, and oxygen, how many electron it will gain? Okay, so look, all these they will have valency 1 plus. Group 2 will have how much? Plus 2. This fellow is gaining 1, so it will be what? Minus 1. This will be how much? Okay, so these are known as what? Metals. These are known as non-metals. So the bond which is formed between metal and non-metal is known as which bond? Ionic bond or electrovalent bond. It is formed due to transfer of electron. Okay, now in exam, what all type of question will come that I'm also going to discuss with you. Chalo. So now let us start. Right, here we have our chemical bonding. Now these are my notes, beta. If you see here, beta chemical bonding, the very first thing what we have written, electrovalent bond or ionic bond. Okay, so how these are formed, beta, come on. Look, now if I want to do sodium chloride, so what will happen? So this is orbit. Now in 10th standard, you don't have orbit structure. We have which structure? Dot and cross structure. We have which structure? Dot and cross. Sodium 281, chlorine is 281. So what it will do, beta? Sodium will lose one electron or not? Right? So it will transfer one electron. Can you see now this electron is getting transferred? Look here. To attain stability, chlorine needs to gain one electron. Look, can you see this electron is getting transferred? So sodium will develop with charge positive and chlorine will develop with charge. So this bond is for oppositely charged ions are held together. Therefore, it is known as which bond? Electrovalent or ionic. Ions are formed. Therefore, it is known as ions are transferred. Ionic. Right, beta? And opposite electron are transferred. So therefore, we can say it as what? Electrovalent. Clear? Any difficulty here? Right? But in exam, beta, they expect you to draw dot and cross structure. What, beta? Dot and cross. So now I want all of you to see this, beta. In 10th standard, they will tell you to dot and cross. Whenever there is metal and non-metal, you will show dot and cross. So look here. Can you see sodium 281? So which electron we are showing? Only the outer one. So this electron is getting transferred. So sodium will develop a charge positive. Now can you see the octet? Here chlorine was having how many electrons? 7. So now this one electron has come here. Can you see its octet is complete? Minus. So positive and negative, it will become sodium chloride. In exam, whenever they tell you to draw this, what all thing you'll have to write, this electronic configuration is very important. This electronic configuration is also very important. Then this square bracket is important. This charge is also important. And can you see this? This has been transferred. This arrow should be also there. And finally, we get what? Sodium chloride. So bond it is formed due to transfer. The one who loses electron, that is what? Metallic.
Okay, electropositive. The one who gives, that is what? Non-metallic. Electronegative. Okay, here how many electron was transferred? One. How many was transferred? Now if I go to the next one quickly, ये बेटा खाली आगे का थोड़ा रिवाइज होगा तुम्हारे लिए बराबर. Calcium oxide, calcium now, calcium 288 and oxygen. So what will do? What will happen in this case? Come on, tell me. Calcium will lose 2 electron. Oxygen will gain 2 electron. Right, beta? So look, it will transfer 2 electron. Can you see this? Now it will develop what? 2 positive charge. This will develop what? 2 negative. Clear? Any difficulty till here? Right? So this is how you get calcium oxide. So now, but in exam, they will tell you to do what? Dot and cross. So calcium 2882. This is very important. Can you see I have shown this electron by 2 electrons? Is this visible not all of you, beta? Okay. So calcium develop with charge, positive. Oxygen develop with charge, 2 plus and 2 minus. Here, how many electrons are transferred? So the bond which is formed by transfer of one or more electron from metallic electropositive element to non-metallic electronegative element is known as electrovalent bond. So now come to the definition, beta. Look, the chemical bond form is result of transfer of one or more. Now why more we have said, have you understood? From the metallic electropositive element to an atom of non-metallic electro. Now, this is what you have not studied in your lower standard, that is electrovalency. Electrovalency means what, beta? Every element. Now, metal, what it did, it donated. And non-metal, what it did? Come on. It gained. It what? Gained. Okay, electron. To attain the electronic configuration in which shell? Valence shell. Okay, and which electronic configuration? Stable. So what is number of, please you have to read question carefully. If they say electrovalency, it is the number of electron donated or accepted by which shell? So as to achieve stable electronic configuration is known as what? Electrovalency. In exam, they will tell you to define electrovalency, or they will tell you state the term, that is the number of electron gained, lost, okay, from the valence shell to attain the electronic configuration of nearest noble gas. Any difficulty here? Okay, clear. Now, beta, we go to the magnesium. Now, you tell me, beta, in magnesium, what will happen? Magnesium has how many electrons in the outermost orbit? 2. And chlorine can gain only 1. So, how many chlorine I'll have to draw? 2. So, it will donate 1 electron to each of the chlorine. Can you see? Right? So, what will happen? Can you see this here? So, magnesium will develop how much charge? 2 plus. Chlorine will develop how much? 1 chlorine will develop 1 negative charge. Now, very important thing, beta, whenever they ask this, and most of the students, they go wrong while drawing this, because you'll have to draw this way. Look, magnesium, it is 288. How many chlorine you'll have to draw? 2. This is cross and this is dot. You have to be very careful. So 1 electron will go here, 1 electron, so Mg2 plus. Now, how many chloride I got? 2, na? So I've written here 2 chloride. And it will become MgCl2. In exam, if you don't write this electronic configuration, you will lose marks. In exam, they will ask you, which is the nearest noble gas to magnesium? Neon. Who is the nearest noble gas to chlorine? Okay. Who is the nearest noble gas to calcium? Argon. Who is the nearest noble gas to oxygen? Neon. Are you getting it? Okay. Electrovalent bond, ionic bond. Have you understood? Last class, beta, I taught this. I gave these 3 as a homework. Clear? Eh? Now, beta, very important thing I'm going to teach you. Oxidation and reduction. What is oxidation and what is reduction? Jeet, beta, do you know what is oxidation? Oxidation is what? Loss of electron. Reduction is what? So what I want you to write oxidation, you have to remember the trick Leo. And here what you'll remember? Germany. What you'll remember? So what is Leo? Loss of electron is oxidation. Gain of electron is, you will remember this, beta, gain of electron is what? Reduction. Loss of electron is oxidation. Please write this. मतलब लियो जर्मनी, अरे तूने लिखा है बेटा, तुम लोगों को लिखा है, उन लोगों को फटाफट लिखने दे, चल फटाफट. ओके, वो चलो फटाफट करते. ओके, राइट बेटा. ठंडी लग रहा है मैन, तो हम पंखा बंद कर दे. एसी का कुछ करें, एसी का टेम्परेचर बढ़ा देगा. बात नहीं होगा यार, एसी बंद, सफोकेशन किया तो है बेटा, ठीक है ना? हाँ हो गया. तो फैन बंद कर दूं क्या? कौन सा आगे का फैन? पीछे तो चाहिए ना. चलो.
Okay, so sorry. Yeah, have you written this, beta? Now, beta, oxidation mein what will happen, beta? Loss of electron. They will give you an exam, right? Ionic reaction. What they will say you, right? Ionic reaction. Okay. Now, what I want, beta, whenever you do oxidation and reduction, have you written this part? No, beta, oxidation. Now, I am writing a number line, beta. What is this? Number line, mein, beta. This is what? 0. This is what? Minus 1. Sorry, plus 1, plus 2. Right, beta? Plus 3. Here, what is what, beta? Minus 1, minus 2. Okay, beta. If I go in this direction, increase in charge is oxidation. This is what, beta? If I go in this direction, then it is oxidation. And if I go in this direction, then अच्छा दिस ये नंबर लाइन आपको चल बनाना है तो बना दो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस आई टेल यू आई टोल्ड यू ऑल टू राइट ओके नंबर लाइन लेफ्ट में जा राइट में जाएगा तो क्या होगा ऑक्सीडेशन लेफ्ट में जाएगा तो रिडक्शन તમારી સ્કૂલ ચાલુ છે પણ છૂટી છે ને ઓકે તો એ કેમિકલ બોન્ડિંગ પતાવી દીધું ને એકવાર પૂરું કમ્પ્લીટ કોઓર્ડિનેટ ડોન કરી દીધું નહીં ઓકે ટુડે વિલ ડુ ધેટ ટુડે વિલ ફિનિશ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર यू गेटिंग इट नो ब्रो होमवर्क किधर है तेरा गलती से बुक नहीं यहाँ पे बैठ के कराऊंगा ठीक है ना ये कर दिया बेटा आप लोगों ने ओके नाउ इन एग्जाम बेटा टू थिंग यू शुड नो बेटा व्हाट टू थिंग यू विल नो बेटा व्हाट इज पॉजिटिव आयन नोन एज हाँ वही यही गड़बड़ हाँ सबका ये गड़बड़ मैं सॉल्व करवा देता हूँ बेटा आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर बेटा ऊपर बहुत जगह है बेटा दिखाई दे रहा है ना तो वहां पे आप क्या लिखोगे पापा तुम लोग को लिखवाया बेटा कार्टून पापा cartoon. Papa cartoon means what? P means what? Positive. Positive is what, beta? Anode. Anode is what? Positive. Cartoon means what? Cat. Cathode. And N is what? So cathode is negative and this is what? Okay. So now iron. What, beta? Iron. Which ion will go toward positive? पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव ना तो नेगेटिव जो भी होगा नेगेटिव वाला आयन जो होगा नेगेटिव आयन कौन होगा बेटा नेगेटिव आयन कहाँ पे जाता है एनोड के पास एनोड के पास जा रहा है ना तो वो आयन का नाम क्या हो गया अनायन अब समझा अनायन का नाम अनायन क्यों आया ओके सो अनायन गोज टुवर्ड्स whom बेटा एनोड बट एनोड इज पॉजिटिव सो अनायन विल बी अच्छा कैथोड पे which charge is there negative. So which ion will move towards positive ion? And since this ion is moving towards cathode, therefore cation is positive. Clear? अब कभी भूलोगे क्या हाँ इलेक्ट्रोड के लिए क्या ट्रिक है पापा कार्टून ऊपर लिख ले वो वही पेज में एकदम ऊपर लिख लो बहुत कुछ ऐसा मैं लिखवाने वाला हूं अरे इन दिस पेज ओनली शो देम हाउ टू राइट above, below, wherever. You have to write it. Now, will you forget, beta? Papa cartoon means positive anode. And anode is positive. So, ion which move towards the positive is negative. And since that ion is moving towards anode, therefore the name of the anion, negative ion is what? Anion. Positive ion is known as cation. Clear? Students get always confused between this anode and anion, cathode and cation. Clear? अब कितने लोग आए 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 ओके डन 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 अभी नेक्स्ट क्लास में कौन नहीं आने वाला है ऑनलाइन भी नहीं ज्वाइन कर पाएगी अगर ट्रैवल कर रही है तो यू आर कमिंग बैक ऑन सैटरडे अदरवाइज बेटा नो दिस लेक्चर because I'll be starting with periodic table. We want to finish periodic table. Okay, not a problem, beta. But you see the recorded video, and I'll do the revision for you if you want, beta. Okay. When which day you are going, beta? Which day you are going? Okay. Chalo, done. If you can attend Science tomorrow, you can come because I am going to do their periodic table. I know you, yes. It's okay.
देयर आर 2 बैचेस 9 AM एंड 11:15. ओके चलो बेटा आ जाते हैं. ओके चलो डन डन. हेलो. But if you come to science, then bring that periodic table का notes along with you. Okay, चलो. Any difficulty here? Now in exam, beta, they will ask you ionic reaction. What they will ask you? Right ionic reaction. तो बेटा यहाँ पे पीछे बहुत जगह है, दिखाई दे रहा है इतना. मैंने क्या लिखवाया था लास्ट टाइम, देखा तुम लोगों को? हाँ बेटा इधर. हाँ ionic reaction. चलो आ जाओ. अरे अरे. You have to write two reaction, बेटा. We'll do ये पूरा जाए, थोड़ा कंजूसी में लिखना. एग्जाम में पूछेंगे राइट आयोनिक रिएक्शन. व्हाट बेटा? For formation of NaCl. तो चलो बेटा, how will you write? Na atomic number is how much beta? 11, 2, 8, 1. It will lose how many electron? 1. And it will become Na1 plus. Parnika beta. Now you tell me which reaction is this? Oxidation or reduction? अच्छा बेटा, मैं तेरे को एकदम नहीं नहीं सबसे बेस्ट ट्रिक. इंक्रीज इन चार्ज नंबर लाइन में. इफ यू गो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जीत बेटा, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और नॉट. सो दिस इज न्यूट्रल एंड ऑन दिस साइड इट इज व्हाट बेटा? Positive, no? So charge has increased or decreased? Therefore, it is which reaction? Oxidation. Understood? Okay. Chlorine के लिए how will you write the reaction? Come on, tell me. Chlorine atomic number is 70. Anahita, right, beta? Okay. Now what it will do? Chlorine is gaining 1 electron and it is becoming Cl1 minus. Chlorine atom. Atom is electrically neutral or not? Tell me. Arey, atom is electrically neutral, na? Equal number of protons, and now here which charge it has developed? So what has happened? Charge has increased or decreased. This is the best trick. Because what happens, sometimes I write electron on the left hand side or right hand side, you may get confused. The best trick is what you have to see. Sachi na beta? Well, you have to see the charge. So this is what? So it is what? Reduction. Now what will happen? This Na plus and Cl minus, they both will form what beta? NaCl. Understood? Similarly, if I tell you to write ionic reaction for what? Hello, dear. Ionic reaction for formation of. अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, बोलो ना भाई? कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम क्या करेगा बोलो बेटा? 20 ना बेटा. So what it will do बेटा? Okay, Jeet beta, now tell me what will happen. It will lose 2 electron. So 2 plus. Now tell me whether it is oxidation or reduction. Very good. Loss of, देखो ना बेटा, ये 0 से क्या बन गया? 2 plus ना, increasing charge, oxidation. Now what will happen to oxygen? Come on, tell me. It is 8, 2,6. So what it will do beta? It will gain 2 electron, it become 2 minus. So it is what? So beta, basically if you see in bond formation, both thing is happening or not? In ionic bond, oxidation and reduction. So bond formation, ionic bond formation is which process? Which process? Come on, but beta, reduction भी हो रहा है और oxidation भी हो रहा है ना? Redox reaction. RXN means reaction बेटा. चलो ये कॉपी कर लो फटाफट वहां पे. बेटा अभी नीचे ये जगह नहीं है तो आप समझे ना, और एक रिएक्शन आएगा इधर पे. अरे दिस 2 plus and 2 minus will become what? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलेगा क्या? ठीक है? नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है बेटा इतना. और लो ना बेटा, तो ऐसा बोले नहीं मुझे, मैं बीच में हूँ. आप बोले ही नहीं मुझे. होमवर्क किधर है तेरा? मेरे को दिखा. तेरा मेरे को होमवर्क दिखा दे फटाफट. तेरा भी बेटा मुझे दिखा दे, बराबर किया है कि नहीं पहले ला. ओह ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग बेटा, वेरी नाइस. सो कलरफुल यू आर. बेटा एग्जाम में बेटा तेरे को ना ये पेन से ही करना पड़ेगा, कलर तू नहीं दिखा सकेगी. वेरी गुड बेटा, वेरी ब्यूटीफुल इट बेटा. सो नाइस. सब अच्छे से किया, वेरी गुड, वेरी नाइस. अरे बेटा ऑर्बिट स्ट्रक्चर नहीं है, कौन बोला? हे भगवान, मैंने ऑर्बिट स्ट्रक्चर दिया है क्या बेटा? व्हाट स्ट्रक्चर इज गिवन इन दिस?
ऑर्बिट स्ट्रक्चर इज नॉट देयर ओनली डियर। बेटा शो योर बुक, उसको बताओ कौन सा स्ट्रक्चर, ये ही कॉपी करना था। अरे बेटा इतना मैंने तुझे बताया, एग्जाम में ऐसा करेगा जीरो मिलेगा बेटा। ये कहां से किया, टेक्स्ट बुक ओपन मत कर। नहीं लेकिन ये देख तो सही, डॉट एंड क्रॉस है सिलेबस में, पूरा तूने ऑर्बिट स्ट्रक्चर बना दिया है। बेटा उसको दिखा, यही कॉपी करना है, यही एज इट इज। चलो डन ऑल ऑफ यू। जीत बेटा, है डन। आया, सेम थिंग यू आर सपोज टू डू बेटा। प्लीज बेटा लिसन टू माई इंस्ट्रक्शन, हाँ बेटा। नो डाउट आई अप्रिशिएट यू हैव डन दैट थिंग, बट दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम बेटा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम यू विल डू दैट बेटा, पक्का। डोंट वरी बेटा, मिस्टेक मैं भी करता हूँ, मिस्टेक कोई बात। एटलीस्ट यू डिड दैट आई रियली अप्रिशिएट। बट बेटा व्हाट यू हैव टू डू नाउ, have to listen to the instruction carefully, and you have to draw the structure as given in my notes. Next class I will bring a board booklet. In board booklet I have divided into three parts. First part is all the past. Now earlier beta I used to give past 20 years, but now I removed because earlier scope में से निकल गया बहुत सारा चीज. So I'll be giving you till 2013 तक के पेपर दूंगा, मतलब almost 15 years का. All up with solution. Then I'll give you chapter wise MCQ. Then I have done one extra thing. In extra, mein, what all thing I have given to you? Name the following, odd man out, match the column, right? MCQs also are there in that. Fill in the blank. Diagram based question. वो ही उसी में से पढ़ना. पहले ये पढ़ने का, फिर वो करना है. बस और कुछ नहीं करना है. ठीक है? चलो आ जाओ. Done, 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 done. Now, beta, what we are going to do, beta? Which bond we did? Ionic. Now, what we are going to do? Covalent. Covalent bond we are going to do now. चलो बेटा आजा. जीत बेटा. Now this is a hydrogen and Kubadia beta. Sachi. Yeah. Now this is hydrogen. Hydrogen. One electron. So now what? Who is the nearest noble gas to hydrogen? Helium. So in order to become like helium, it need two electron. And now इसको भी दो चाहिए, इसको भी. So both of them need one more electron. So what they will do? They will come closer to each other. Orbit structure is not there for you. They will come close. Look. Now look at the left hand side. Here. Can you see? अरे यार चलना. सॉरी ब्रो यार. कैन यू सी, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया. राइट वाले का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया बेटा. व्हेनेवर देयर इज वन पेयर को हाउ विल राइट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. व्हाट विल राइट से बेटा, सिंगल. ओके, बट वी डोंट हैव ऑर्बिट स्ट्रक्चर. वी हैव विच स्ट्रक्चर, डॉट एंड क्रॉस. डॉट 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 एंड क्रॉस. Look, this is hydrogen 1 1. Okay. Now both are same, na beta. Therefore, I have not written dot and cross. Are you getting? It's only dot structure. How many pair of electron is shared? In exam, I can ask you in a hydrogen molecule, how many electron pair, shared pair of electron? One shared. How many bond? Single covalent bond, and it becomes H2. Clear, beta? This is the way you will draw, beta. What's your name, Bhatt? Huh? Arush, beta, are you getting it here? So this is only they are going to ask. Huh? That orbit structure is not there. बेटा तूने इतना मस्त सर्कल वर्कल से बनाया यार, एक बार मुझे बोल देता बेटा. मैंने बोला भी था ना आपको कि ऑर्बिट स्ट्रक्चर इज नॉट देयर. सॉरी वॉरी नहीं बेटा, इट्स ओके. क्लोरीन, कम ऑन. परनिका, परिनीता. परिनीता, अच्छे तेरा नाम परिनीता है. परिनीता बेटा, क्लोरीन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर? 7 आउटर मोस्ट. 7 7. सो दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर और नॉट. टेल मी बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड? हाँ, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. बेटा वन मोर, ये एप्लीकेशन टेस्ट क्वेश्चन है. ये जमुना बाई वगैरह के प्रीलियम पेपर में डालते हैं लोग. ये दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, ये लोग बॉन्ड में गया क्या? नो ना बेटा. सो द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which does not go under bond formation is known as which pair? Lone pair. It is known as what? Lone pair of electron. Pair of electrons that do not go in bond formation is known as lone pair. In chlorine molecule, how many lone pair are there? How many total? 6. क्या 3 दिखा रही है बेटा? इसके 3 और इसके 3, तो 6 हो गया कि नहीं? क्लियर है? Okay, but that is just extra thing which I have told you, but you need to remember that. Okay, hey, look here. And chlorine. Can you see outer? How to draw, beta? This way you will draw. Arush, beta, this way. Can you see? इसका ऑक्टेट कंप्लीट ऐसा. अपने को सर्कल वर्कल नहीं बनाना है, अपने को ऐसे ही बनाना है. ठीक है, जैसा मैंने दिया है ऐसे. हमने पैर सिंगल. यस.
No. You will draw this way only. Okay. And your lone pair chlorine ka you don't have to show. Khali you have to show only for the molecule which I am telling you, beta. But you need to know this. So how many lone pair are there? Tell me, beta. हाँ खाली ऐसे लिखो 6 lone pair ऐसे लिखो. नो नीड टू शो. इन क्लोरीन मॉलिक्यूल हमने 6 lone pair लिखा है ना तुम लोग ने कि नहीं लिखा है? देख ले वे हीरो. बुक किधर है तेरा? जा घर पे बाजू में रहता है, जा लेके आ. खत्म हो जान दे. जानता नहीं तो भी मेरे को मालूम है. ये सब मैं केजी में करता था. बुक भूल गया, ये हो गया, वो हो गया. राइट. बायो. राइट. प्लीज बेटा बी सीरियस. हाँ आज मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं. चल हीरो तू ही बता दे. इधर आ. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? 2,6. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 6. तो हर एक ऑक्सीजन को कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए. तो ये लेफ्ट वाले को कितना चाहिए? 2. राइट वाले को? तो व्हाट विल हैपन? दे विल कम क्लोज टू ईच अदर. लुक हाउ दे विल कम क्लोज. देखा? ओके हाउ मेनी पेयर? ये एक शेयर्ड पेयर है 2. हाउ मेनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2? Which bond is there in oxygen? But if they say how many covalent bond, then what do you say? Don't say 2. What do you say? Double covalent. How many lone pair? हाँ आ जाइए ना. इधर पे देखो अभी हमारे बुक में. डन डन. Look, this is the way you are going to. दिखाई दे रहा है बेटा? Hello. Okay, these are 2 shared pairs. So double covalent bond. And how many lone pair? 1, 2. बाजू में लिख दो ना. 4 lone pairs. वो how many lone pair? लिख ले हीरो. आरुष बेटा लिखा है कि नहीं देख ले. नहीं लिखा है तुम्हारा? लिखाया था तुम लोग को? क्या बात है बेटा, लिखाया था. तो होमवर्क करके वो सब याद रहेगा. होमवर्क करके लाना याद नहीं रहेगा ना. ओके बेटा डन 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 डन. चलो आ जाओ अनाइता बेटा. नाउ यू टेल मी व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7. Okay, so 2,5. So how many electrons are there here? 5. Here also how much? So each of them need how much? 3, 3. So how many they will share? They will come closer to each other and they will share. How many shared pair of electron? 3. So nitrogen molecule form which bond? Covalent. But which covalent? Triple covalent. ये बहुत बड़ा था. And how many lone pair will be there? 1 lone pair is pair. ये 1 lone. 2 lone pair. Are you getting it? तो चलो बेटा एग्जाम में अभी आपको क्या क्या पूछ सकते हैं. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना. देख मैंने सब कुछ लिखा है. हमने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया था ऑक्सीजन का 2 2. यहाँ पे देखना 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. हाउ मेनी लोन पेयर हियर? 2 लोन पेयर. 2 लोन पेयर. ओके राइट. एनी डिफिकल्टी यार? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं. ना बेटा वी गो टू द नेक्स्ट वन बेटा. ओके मीथेन. चलो बेटा अभी मैं फटाफट बताता. अभी वो सर्कल सर्कल बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना. यू विल अंडरस्टैंड ना बेटा. चला जाओ. आजा जीत बेटा यार. व्हाट वी हैव बेटा? कार्बन हाउ मच? एटॉमिक नंबर 2,4. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर? 1 2 3 4. यहाँ पे मैंने क्रॉस भी बताया बिकॉज फर्स्ट टाइम आपको अलग अलग एलिमेंट नजर आ रहा है. हाइड्रोजन कैन यू सी 1 1 1 1 1. दे विल कम क्लोज टू ईच अदर. सो हाउ मेनी शेयर्ड पेयर? 1 2 3 4. 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड हाउ मेनी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड? 4 सिंगल कोवेलेंट. No lone pair. Clear? And this is methane. Methane is also known as what? Marsh gas. Right, beta? It is hydrocarbon. It is greenhouse gas. So methane molecule has what? 4 single covalent bond. Okay. ये शा ये शा बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4. कार्बन है धामनी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4. दिखाई दे रहा है? क्लोरीन है धामनी इलेक्ट्रॉन 7. तो देखो बेटा यहाँ पे why I have shown different because they are different element. They will share. Can you see this octet is complete? For this also all octet is complete. This bond is formed due to sharing of electron. Right? Achha, here all the bond which are formed they are always between what? Non-metals. 4 single covalent. Clear? Now one question will come to your mind, sir. What you have written this non-polar, non-polar? I'll explain that. Don't worry. Have patience. First beta will define. Chalo beta, what is the covalent bond? Sachi beta, the chemical bond which is formed due to mutual sharing of electron. What it is? Between which element? Between the atoms of non-metallic. Okay.
Now if they ask you define covalency, then how you are going to define? It is the electron pair of an atom which share one or between one or more atoms of same type or different. हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम था, कार्बन एंड हाइड्रोजन अलग था कि नहीं? कार्बन एंड क्लोरीन वाज डिफरेंट. टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज कोवैलेंसी. दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को सब ये अच्छे से? हेलो हेलो हेलो, राइट बेटा? चलो, dun, dun, dun. Any difficulty till here? Now we are going to go for water. Water beta, how much? What is there in water? Come on, Arush beta. Oxygen is 2,6. How many electron? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hydrogen 1, 1. So now what they will do beta? They will share. How many here? One shared pair of electron. Here also one shared pair. And what about these two? These two are so look, I have written here two single covalent bond and two lone pairs. Two single covalent bond and two lone pairs. In exam they will ask me what is there. ये ऐसा क्यों हो रहा है इसमें? हाँ, अब अच्छा हो जाएगा मेरे हिसाब से. ओ माय हरे कृष्णा. चलो बेटा आ जाओ. डन डन. ओके, नाउ वन क्वेश्चन विल कम. सर ये क्या लिखा है? डोंट वरी, हैव पेशेंस. ओके, अमोनिया क्या है हीरो? अमोनिया. अमोनियम नहीं, अमोनिया. अमोनिया में नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज हाउ मच? टेल मी. 7. So 2,5. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 5. तो देख 1 2 3 4 5. एक एक हाइड्रोजन आएगा. तो हाउ मेनी बॉन्ड, हाउ मेनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 3. 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. नाइट्रोजन में क्या होता था? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. हाउ मेनी लोन पेयर? 1 लोन पेयर. क्लियर? ओके, नाउ बेटा आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच, अच्छा अभी है ना, ये इतना मैंने तुम लोगों को भी कराया था लास्ट क्लास, यहां तक ही कराया था. ठीक है ना बेटा? हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं. ठीक है ना? चलो. ओके, सो लल्ला, जल्दी 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 आज खत्म करने वाला. चलो आ जाते हैं, देखिए सच में आगे बढ़ते हैं. अभी आपको ना बेटा एग्जाम में एक आएगा पोलर एंड नॉन. उससे पहले ना आपको मैं एक टर्म बता देता. कभी आपने 11th में पढ़ना है, सॉरी 11th में, 11th 12th को भी पढ़ा था ना, इसलिए बार बार वो आएगा, बट 11th में 12th में ऐसा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम सुना है कभी? हाँ, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नाइन्थ में क्या किया? पीरियोडिक टेबल पढ़ा के नहीं पढ़ा था नाइन्थ में? भूल गए? अच्छा बेटा कोई बात नहीं बेटा. एवरी एलिमेंट है व्हाट? टेंडेंसी टू पुल व्हाट? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ in its compound, in its is known as electronegativity. Imagine बेटा, we are all element of periodic table. अगर अभी मैं आप लोगों का ये गेम करवाऊंगा, कौन सा वाला? टग ऑफ वॉर. क्या कराऊंगा? टग ऑफ वॉर. सपोज बेटा ये ऐसा टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर में पता है हम लोग ऐसा नॉट बांधते हैं, राइट? सो दिस इज एक्स एंड वाई. अभी कौन स्ट्रॉन्ग आपको नजर आ रहा है इसमें? हाँ, तो ये टग ऑफ वॉर होगा तो इलेक्ट्रॉन पैर किसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा? बोलो. वेरी गुड. अभी इलेक्ट्रॉन पैर किसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा? बोलो बेटा. लेकिन एक्स भी उसको छोड़ेगा क्या? नहीं, पकड़ के रखा है, याद रखना. तो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं, पार्शियल ट्रांसफर हो रहा है. ना अभी इलेक्ट्रॉन किसके साथ ज्यादा वक्त बिताएगा? एक्स के साथ या वाई के पास? तो इट विल डेवलप पार्शियल नेगेटिव चार्ज. इट विल डेवलप. कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? अगर पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो जाता. आयन यहां पे बन रहा है क्या? तभी दो पोल बन गया कि नहीं? पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल. इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलार कोवैलेंट बॉन्ड. पोलार बॉन्ड. तो पोलार कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होना चाहिए? एक्स और वाई के बीच में हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए. क्या होना चाहिए? हाई. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन इट्स कंपाउंड. इन इट्स कंपाउंड. पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग है वो मैं तुमको बता देता हूं. फोन कॉल. फोन, हम लोग फोन कॉल का मैंने स्पेलिंग चेंज कर दिया. फोन कॉल. फोन कॉल में मतलब कौन आ गया? बोल बेटा. क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. कॉल मतलब नहीं, सीएल. सीएल कॉल मतलब क्लोरीन. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ये. अच्छा, इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास बुलाएगा? मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल. तो ऑल दीज आर नॉन मेटल. आर यू गेटिंग इट?
अच्छा ना, पूरे सिलेबस में आपको एग्जाम में कोई एमसीक्यू आएगा, दे विल गिव यू 4 कंपाउंड्स, फिर उसमें से बोलेंगे कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर। अभी नॉन पोलर होने के लिए साची बेटा क्या होना चाहिए? सपोज बेटा ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों, अभी इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर होगा, तो ये लोन पेयर कहाँ पे, सॉरी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भी शिफ्ट होगा क्या? एक्स से, दोनों सेम से ऐसे ही रहेगा बेटा। तो यहाँ पे इक्वल इलेक्ट्रॉन इज इक्वली शेयर्ड, अनइक्वली हो रहा है क्या? तो ये बॉन्ड क्या होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर में कोई दो पोल बना क्या? नहीं। नॉन पोलर में दो पोल बना क्या? नो ना बेटा। ओके, तो अभी इधर आ जाओ बेटा, डन डन, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है। और आप लोगों को यहाँ पर देखो बेटा क्या लिखा है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सुने डेफिनेशन, कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर था, बोथ वेर सेम ना बेटा, it was equally when shared pair of electron is what, equally distributed between two atoms। यहाँ पे क्या हो रहा था पोलर में? अनइक्वली। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द नेम गिवन टू द टर्म व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, so what you say, non polar polar। what is the term given to the bond when shared pair of electron are unequally distributed? पोलर नहीं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा बरोबर बोलो, कोवेलेंट बॉन्ड। या यहाँ पे चार सेपरेशन हो रहा था क्या? इल्ले नो, यहाँ पे चार सेपरेशन होता है। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा किस में पोलर है और किस में? तो बस ट्रिक दे देता हूं। क्या लिखोगे आप? हेड फोन कॉल, याद रहेगा, हेडफोन कॉल। फोन हेडफोन होता है ना, हेडफोन, हेडफोन, फोन का स्पेलिंग मैंने चेंज कर दिया है। तो अभी आप मेरे को बताओ किस किस के बीच में पोलर होगा? एच और एफ के बीच में क्या बनेगा? एच एफ। एच और ओ क्या बनाता है, एच और ओ के बीच में विच मॉलिक्यूल? H2O। एच और एन के बीच में क्या बनेगा? अमोनिया। ठीक गया? एच और Cl के बीच में क्या बनेगा? अरे बेटा इतना ठंडी लग रहा है, सिकुड़ रही है बेटा, ओ माय गॉड। ए, ये ट्रिक याद रहेगा बेटा। શું करूं बेटा मैं? बंद कर देंगे तो बेटा लोचा हो जाएगा, सफोकेशन हो जाएगा, फिर टर्बो दब जाएगा इसमें। अच्छा टेम्परेचर और बढ़ा और चलो, हैव यू अंडरस्टूड ना बेटा? ये लिख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रहेगा, लिखो ऊपर। ये पोलार के लिए क्या ट्रिक है? हाँ, हेडफोन कॉल मतलब किस में होगा बेटा, बोलो बस। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में क्या रखने का, बोल, हेडफोन कॉल। हाँ, पोलार के लिए। बस ये चार ही आपके सिलेबस में पोलार है, इसके अलावा सारे कौन है? नॉन पोलार। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ऑल आर रिमेनिंग, ऑल आर नॉन पोलार, रिमेनिंग ऑल आर नॉन। अभी भूलोगे कभी? हेडफोन कॉल लिख लो। हेडफोन कॉल में आपको समझा ना, एच और एफ, एच एफ बनेगा, अरे मैं लिख कलर चेंज करके लिख देता, एच एफ, एच टू ओ, अमोनिया, एंड हियर विल बी एच सी एल। ये यहाँ पे लिखा है ना एग्जाम्पल। ओके, परिणीता बेटा अभी तू मेरे को बता, मैं एग्जाम में आई लास्ट यू वन क्वेश्चन, आई विल गिव यू, अच्छा पहला सबको लिखने दे बात। बॉक्सेस में क्या है, डॉग्स के गिफ्ट है क्या? खाली है? हाँ तो ऑब्वियसली बेटा वॉशरूम यूज करने के लिए ही है बेटा। ए हीरो, थोड़ा इसको साइड देना बेटा, ही वांट्स टू यूज द वॉशरूम, आज ही उठना है बेटा। डन डन, चलो, हेलो। आप लोग एवीएम बेस्ट वालों को जानते तो होगे ना, वो लोग आते होगे ना पेज के क्लास के लिए, फिजिक्स के लिए नहीं आप लोग जाते हो क्या? डिफरेंट बैच, पिंकी सर के पास ही हो तुम लोग? सर के पास, निमकर सर, आप रॉबिन्सन।
अच्छा, रॉबिन्सन के पास कौन है? आप लोग सब लोग? चलो बेटा, तो यहाँ पे तीन, यहाँ पे कौन है? रॉबिन सर, पिंकेश सर एंड निमकर सर ना, चंदन। पिंकेश सर यू डोंट नो? अच्छा, 9th दिन जो गो फॉर एनी क्लासेस और समथिंग लाइक मैथ्स फिनिमिक्स। तो तू वहां पे सेंटर में आती थी ना? अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी सैन। तो आई हैव अ बैच एट सेंटर क्रूज आल्सो, विच वेरी स्टे। तो फिर दिस इज क्लोजर फॉर ऑफ कोर्स। My center is next to Vinimis. This thing. There is a building KL Eklod, that कैप्टन जी के ऊपर, 6th फ्लोर। एनीवेज बेटा, आ जाते हैं। चलो बेटा, डन डन डन। अभी बेटा एग्जाम में व्हाट क्वेश्चन आई लास्ट? Please beta, I am giving you, sorry, Parinita beta. I'll give you three example of this and one from here, and I'll ask you which among the following is MCQ में this, which among the following is polar? Are you getting it? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और what I'll give you beta, I'll give you these three, and I'll give you one example from here. Which of the following is non-polar? तो आपको खाली पोलर का ट्रिक याद रहेगा तो नॉन पोलर आ जाएगा ना बेटा? ओके। तो अच्छा, अब ये नॉन पोलर में और पोलर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होने के लिए क्या होना जरूरी था बोलो बेटा? हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड हियर इट विल बी व्हाट? सिमिलर इलेक्ट्रो, सिमिलर वर्ड आई यूज। हम्म। लाइट बंद कर देना बेटा। गुड बॉय। अरे 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 अरे, बॉटल भी गिर गया बेटा तेरा। ए तू नोट्स गिरा देगा अभी देख। बॉटल गिर गया है, पेन का इरेजर भी एक गिर गया है। इरेजर है, देखो तेरा ही है, बॉटल भी तेरा ही है। और वो इरेजर देख, ब्लैक कलर जैसा दिख रहा है कुछ। वो देख, ये देख, ये देख। ओके फाइन इनफ, तो पिक अप द बॉटल मैन। नाम क्या तेरा? शौर्य बेटा, यार ऐसा नाम में शौर्य और बाकी कार्य तेरे एकदम। ठीक है ना बेटा? चलो बेटा, आ जाते हैं। ये पॉइंट लिख दिया, हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसमें सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें पोलर और इसमें लिखा है हेडफोन कॉल, वो सब लिखा के नहीं। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? आई विल गिव यू थ्री एग्जांपल फ्रॉम हियर एंड वन एग्जांपल फ्रॉम हियर एंड आई विल टेल यू व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज पोलर। तो हेडफोन कॉल वाला ही पोलर होगा। ओके ना? अभी आप लोग, अभी आप लोगों को अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको क्या वर्ड दिखाई दिया था बोलो बेटा? अभी आप बताओ क्यों नॉन पोलर है, बताओ। दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इक्वली शेयर होगा। समझ में आ गया? जीत बेटा, वाई दिस इज नॉन पोलर अगेन, टेल मी, बोथ आर सेम ना? राइट? यो शाह, यो शाह बता मुझे। सेम, बोथ आर सेम ना बेटा? आरुष बेटा, वाई दिस इज नॉन पोलर? बोथ आर सेम। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बेटा। अभी हाँ, ये वाला, दिस अनायता बेटा, यू टेल मी बेटा, अभी ये तो अलग लगे ना बेटा? हाँ तो ना, आई टेल यू, देखो, एक जन मेरे को यहाँ से पुल कर रहा है, एक जन कहाँ से कर रहा है? यहाँ से। एक जन ऊपर से और एक नीचे से, और पुल करने वाले सब सेम है, तो मेरा नेट होगा क्या कुछ? नहीं होगा ना? हाँ। तो यार बेटा दिख रहा है, तो नेट, नो नेट, सो देयरफॉर इट इज नॉन पोलर। लेकिन मैंने तुमको ट्रिक बता दिया है ना, पोलर, पोलर वाले सिर्फ हेडफोन कॉल है, इसमें हेडफोन कॉल है क्या? नहीं ना? ओके। अभी आप बोलोगे सर क्लोरीन का तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, शौर्य बेटा, बराबर है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचेगा, लेकिन ये यहाँ पे खींचेगा, ये यहाँ पे पुल करेगा यहाँ पे। हाँ तो सेम है ना बेटा, यहाँ पे आगे पीछे लेफ्ट और राइट, तो बराबर हो जाएगा, तो नॉन पोलर। समझा क्या नहीं? अभी समझा ये नॉन पोलर क्यों लिखा था? साची बेटा, अभी तू मुझे बताओ, कम ऑन, यू हैव टू टेल मी। एंड आ जाओ।
बेटा यहाँ पर हमने पोलार क्यों लिखा है, बोलो ना। हेडफोन कॉल में आता है कि नहीं, एच और ओ। बेटा परिणीता, ये क्यों ऐसा है हमारा, बोलो। हाँ हेड, अब समझ में आया ना बेटा। नाउ बेटा अभी वी आर गोइंग टू डू टू स्ट्रक्चर विच आउट ऑफ दिस वन विल डेफिनेटली कम, एवरी ईयर ऐसा आता है, दोनों में से एक आता है। अब तक हम लोग ने कौन सा बॉन्ड पढ़ा, बोलो बेटा। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, ट्रांसफर और वन और टू। कोवेलेंट में क्या होता था, शेयरिंग। अब बेटा यहाँ पे नया टाइप का बॉन्ड हम लोग पढ़ने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले मैं ऐसे ही बता था, डन 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 बेटा। ये देयर इज वन बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, ए इज हैविंग वन लोन पेयर, बी इज हैविंग नथिंग, बी इज हैविंग। now when they come close to each other, so what will happen beta, this both the lone pair, for both the pair are shared by only one element. अब तक क्या हो रहा था कोवेलेंट में, हाइड्रोजन was giving one, then another hydrogen was also giving, if oxygen was giving two, so this oxygen was also giving two. Both the combining atom were contributing equal number of electron, here both the electron is given by whom, one of the, so now this bond, how to draw this bond, we'll draw by this arrow. It is a type of a covalent bond only. It is a type of a. Don't look there. First, pay attention here. First, pay attention here. It is a type of a covalent bond only, but both the electron is donated by one single atom. Clear? So we draw with the help of this arrow. So arrow वाला bond को हम लोग क्या कहते हैं? Coordinate covalent bond. Which bond? Or it is also known as dative bond. It is also known as dative bond. Understood? Yeah. नो नो बेटा, बी हैज नॉट इनकम्प्लीट ऑक्टेट, उसमें कुछ नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बोला कुछ नहीं था ये नहीं। हाँ वो मैं बता, एक एक कर पहले ये समझा पहले। अच्छा अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था, ए एक इलेक्ट्रॉन लेके आता था, ए इलेक्ट्रॉन, सो दिस वाज व्हाट, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, याद आ रहा है, हाइड्रोजन वन ऐसा लाते थे तो कोवेलेंट। बट यस बोथ द इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय ओनली वन एटम, ओनली वन ऑफ द एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। चलो बेटा आ जाते हैं। Hey, now they go. So type of covalent, that's a type of covalent bond formed by shared pair of electrons with both electrons coming from same end. It is known as which bond? Coordinate bond. What is another name for this? लिखो वहां पे dative bond. एक स्कूल के एग्जाम में पूछा था, you know, what is dative bond? Dative bond and coordinate bond both are same. Is this clear to all of you? Hello. Hello. Hello, hello, hello. Okay, now let us go to the next part. Now this is very important. बेटा ये दो में से एक आएगा ही एग्जाम में, बोर्ड में, ठीक है। Now, this question can be asked in बेटा many ways. Okay. First, if you dissolve any acid in water, any acid in, so it will always give you what beta, hydronium ion. What it will give you? A hydronium ion. And plus of course acid का कोई भी part आएगा, मैं बता दूँ। Suppose if I take an HCl, if you dissolve HCl in water, what you will get बेटा? हाइड्रोनियम ऐसा बनेगा। ये H इसके पास चला जाएगा और क्लोरीन पे भी चार्ज इट विल डेवलप। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन एसिड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन, बट ये ड्राइंग करने के लोग ऐसा घुमा के पूछते हैं। व्हाट दे आस्क, यू नो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव आयन फॉर्म, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ when acid is dissolved in water, when acid is, तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, they won't say direct hydronium ion. Okay, so I'm giving that बेटा, look इसके बाजू में लिख देते हैं ना बेटा, पॉजिटिव आयन फॉर्म, पॉजिटिव आयन फॉर्म when acid is, write it बेटा, dissolved in water. तो एग्जाम में क्या पूछेंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉजिटिव आयन फॉर्म व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। दैट मींस यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, व्हिच आयन, हाइड्रोनियम। यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ व्हिच आयन, हाइड्रोनियम।
Is this clear to all of you? Hello. बेटा नेक्स्ट क्लास में ना आई एम गोइंग टू डू पीरियोडिक टेबल सुन बेबी सुन नाम से योशा येशा and what I'll do, I'll give you the board booklet and I'll tell you to do the MCQs of both the chapter in front of me. In the meanwhile, I'll be teaching them and some board question also. Okay, chalo. Done. Chalo. Okay, now how to draw this, beta? In exam, they will tell you to draw the structure of hydronium ion. What they will tell you? लिखा था ना बेटा आपने? Sure, बेटा. Are you following? Any doubt? Anything? Okay, hey, we have drawn today what? Acha, now I'll show you one thing. Chalo, Arush, beta, you have to see this. I'm going to explain in detail. Hydrogen, beta, you know, beta, hydrogen atomic number is 1, mass number is also 1. So in hydrogen, there is 1 proton and 1 electron. Right, beta? Suppose, beta, if I remove 1 electron from this, what will happen? If I remove this electron, so what will happen? So this hydrogen was there, beta. Okay, if I remove 1 electron from this, so what I'll get? H plus. What I'll get? ओके अच्छा ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो अभी सिर्फ क्या बचा प्रोटॉन बचा ना तो व्हाट इज द नेम ऑफ H प्लस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन अब इसके बाहर कुछ है क्या बेटा नथिंग फर्स्ट ऑर्बिट में उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए अब ये समझा अब देखो बेटा यहाँ पे ए लुक ये वाटर था कि नहीं ये प्रोटॉन कहां से आया फ्रॉम एसिड हाँ बेटा एसिड व्हेन यू डिसॉल्व यू गेट H प्लस ना बेटा ये देखिए Hey, what are we have done this way? Oxygen, how many electrons are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. हाइड्रोजन का 1 1 सो यहाँ पे इक्वली शेयर हो रहा है कि नहीं बोलो बेटा तो देखिए ये नॉर्मल बॉन्ड बनाया ब्लू ऐसे मैंने बनाया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड सिंगल बाय हाइड्रोजन इज वाज आल्सो गिविंग 1 ऑक्सीजन वाज आल्सो गिविंग अच्छा अब ये प्रोटॉन को बाहर कुछ भी है क्या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर्स 2 so now what will happen these 2 electrons are available here or not tell me beta can you see these two? So both the electron for sharing is given by whom? So both the electron. Can you see? So this will be which type of bond? Arrow wala bond, right, beta? We just now did, na beta? If both the electrons is coming from one, then we draw which bond? Arrow. अच्छा, what was the charge on this? H plus. अभी H plus इसमें ऐड हो गया तो पूरे पे क्या चार्ज आ जाएगा H plus? Water was neutral or not? Tell me. And here what I'm going to show, can you see this is single covalent, single and this one will be तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए आता है अच्छा नाउ इन दिस आरुष बेटा टेल मी दिस इज बॉन्ड फॉर्म हो गया बॉन्ड फॉर्म हो गया बॉन्ड फॉर्म हो गया इसने बॉन्ड में फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया क्या तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे लोन पेयर व्हाट विल कॉल इट एज लोन पेयर इन एमसीक्यू दे विल आस्क इन हाइड्रोनियम आयन हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर हाँ तो हाइड्रोनियम आयन हाउ मेनी लोन पेयर 1 लोन पेयर ऊपर लिखा भी है लेकिन फिर भी मैं लिख देता 1 लोन पेयर लिख लो आप लोग भी 1 lone pair in hydrogen. Mark it very very important. अच्छा today बेटा आरुष बेटा you have to do again हाँ बेटा don't draw that circle वाला बेटा directly ऐसे बनाएगा and others also you have to do this हाँ whatever structure I have done today you are going to draw तू भी किया हाँ तूने तो किया ही नहीं है बोला बुक घर पे रख के आया है आओ अभी तेरे साथ घर पे देखूं तेरा बुक खोल के हाँ this is very very important समझा कोऑर्डिनेट बॉन्ड साची बेटा हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड अच्छा कॉमन मिस्टेक डन बाय द एग्जाम स्टूडेंट्स सॉरी फर्स्ट they forget to write this positive charge second they forget to write this arrow wala bond they forget to write this lone pair clear ये पूरा they in exam they say draw structure of hydrogen ion you have to draw entire this much clear okay बेटा एनीथिंग विच हैज OH देखो बेटा यहाँ पे व्हाट वी डिड बेटा परिणीता दिस वाज एसिड और नॉट टेल मी acid when you dissolve in water you get which positive ion hydronium similarly beta you know beta if ammonia is dissolved in water what ammonia is also known as base ammonia is basic in nature so if I dissolve ammonia in water so what I'll get tell me I'll get ammonium ion which ion
Ammonium is the positive ion. And what else I'll get? OH minus. This is hydroxyl ion. That is the negative. Examiner check what type of question they will ask. Draw the structure of the positive ion form. Positive. Then what is dissolved? Base or ammonia is dissolved in water. So what will, if in exam this will come, how you'll write? एक तो वो लोग डायरेक्टली पूछेंगे साची बेटा डायरेक्टली और व्हाट दे विल से पॉजिटिव आयन फॉर पॉजिटिव व्हेन बोलो अमोनिया और बेस अमोनिया इज अच्छा अमोनिया ही लिखता बेटा बेस जाने दो अमोनिया इज डिजोल्व इन वाटर लिख ले बेटा वहां पे बाजू में किसके बाजू में लिखेगा बोलो अमोनियम 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 अच्छा वी डिड टुडे जीत बेटा वी डिड टुडे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और नॉट टेल मी तो अमोनिया में वन नाइट्रोजन इज देयर थ्री हाइड्रोजन इज देयर सिंगल सिंगल बॉन्ड एंड वन लोन पेयर राइट अच्छा नाउ प्रोटॉन इस प्रोटॉन के बाहर कुछ है क्या so it requires how many electron two so who will give this two electron can you see pay attention here बेटा ठीक ये दोनों एरो इसको दे देगा बेटा राइट ना देखा यहाँ पे देखो आरुष बेटा this it was having lone pair or not so both will be given by now this was what beta one electron was of hydrogen and here one of oxygen one of oxygen one of hydrogen one of oxygen one of so this will be normal covalent bond look can you see these are three normal covalent bond but here both the electron is given by nitrogen so it is which bond arrow wala bond arrow wala bond is which bond coordinate okay शौर्य बेटा इसमें एग्जाम में तुझे एक क्वेश्चन पूछेगा क्या पूछेगा पहला तो मिस्टेक क्या करते हैं ये आप लोग ऐसा ये पॉजिटिव बनाना भूल जाते हो या टेल मी डियर व्हाट हैपेंड अरे टेल ना ओके दिस पॉजिटिव है टू शो सम यू विल फॉरगेट जो मैं बोल रहा ध्यान दो यू विल फॉरगेट टू शो दिस एरो वाला बॉन्ड यस यू हैव सम डाउट बेटा टेल ना अरे बोल ना तू कुछ डिस्कस करे तो ओके नाउ वन मोर क्वेश्चन शौर्य बेटा इसमें कितना लोन पेयर एक भी लोन पेयर नजर आ रहा है हाँ एमसीक्यू में दे विल आस्क इन अमोनियम आयन हाउ मेनी लोन पेयर देखो जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना तो मैं ऐसा क्वेश्चंस बताता हूँ और सेम क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में दिखेंगे व्हेन अमोनियम आयन इज फॉर्म सॉरी इन अमोनियम आयन हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर ओके इन हाइड्रोनियम आयन हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर वन लोन पेयर इन वाटर हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर इन अमोनिया अमोनियम अमोनियम में जीरो अमोनिया में कितना था वन लोन पेयर अमोनियम में जीरो हाइड्रोनियम में यहां तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी चलो बेटा वेल अब इधर पे आ जाते यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने सब बता दिया था चले ए अनाइता बेटा यू हैव टू टेल मी बेटा वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फटाफट देख के बता चल it gives you Fe3 plus इलेक्ट्रॉन चलो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाँ बस क्यों रिडक्शन बोला बता मुझे हाँ मैंने कभी इसलिए बोला ये इलेक्ट्रॉन देख के गड़बड़ होता है बेटा तुमको मैंने आज क्या ट्रिक दिया था इंक्रीज इन चार्ज अब यहाँ पे देख मेरे को बता तो यहाँ पे क्या था बोल +2 था यहाँ पे कितना है हाँ इसलिए बेटा वो इलेक्ट्रॉन देख के करेगी तो तू मिस्टेक में चली जाएगी एक्चुअली में ये प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा है ना वो यहाँ से माइनस हो रहा था माइनस को मैथ्स में यहाँ पे लाके तो बेस्ट ट्रिक क्या है चार्ज देखने का चल बेबी ये क्या होगा बोल बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साची वेरी गुड तो ये देख तू इलेक्ट्रॉन को देख मत ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुआ था तो चार्ज देखने का क्या देखने का समझा गया बेस्ट ट्रिक है वो बेटा ओके हेलो तो देख अरे यार ये मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको बता दिया कि नहीं बोलो देख बेटा वो सब तो इलेक्ट्रॉन देखने का नहीं यहाँ पे क्या था +2 और माइनस थे तो क्या बढ़ रहा है कि नहीं यहाँ से 0 से +1 बढ़ रहा है ना तो ये सब ऑक्सीडेशन है ये 0 से क्या हो गया बोल बेटा -1 तो क्या है ये क्या हो रहा है बोलो अब कभी भूलोगे क्या
ये अभी एग्जाम में बेटा आप लोगों को ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा. ओके अनायता बेटा, you have to answer this. Draw a structure or name a compound which have all the three bond. Ionic bond also, covalent bond also, and coordinate covalent bond. What beta? A coordinate covalent. अच्छा, do you know beta? Whenever I take ammonia, I'll make it react with HCl. What I'll get beta? NH4Cl. बेटा you know ना NH4 पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस. Cl पे क्या होता है? अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक. अच्छा, आज हम लोग ने अमोनियम बनाया था कि नहीं बोल बेटा? तो अमोनियम में तेरे को क्या क्या मिल रहा था, टेल मी. अमोनियम अभी बनाया था कि नहीं बोल बेटा, ये देख. कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी था, और ये क्या था? कोवैलेंट. अच्छा, अभी यहाँ पे अगर मैंने क्लोराइड लिख दिया तो ये आयंस है कि नहीं? आयंस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? ठीक है, तो देख बहुत अच्छे से मैंने बनाया. हैव यू अंडरस्टूड ब्रो? लोग बेटा, तो लुक आई हैव शोड एवरीथिंग. कोवैलेंट बॉन्ड, दिस एरो वाला इज व्हिच वन? कोऑर्डिनेट. और ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में मैंने ऐसे बनाया, वो कौन सा बॉन्ड है? बेसिकली एनी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और एनी अमोनियम सॉल्ट विल हैव व्हाट? ऑल द थ्री बॉन्ड्स. अंडरस्टूड? यस, ओनली अमोनियम देन कोऑर्डिनेट एंड बोथ ना बेटा. We have shown also. Look, this is coordinate. Yeah. If they say then, but if they say, give example of a salt which has all the three bonds. And what you are going to write? Ammonium chloride. Okay. Any difficulty here? Yeah, two bonds very rarely asked, but this they generally ask. For these two beta, they will generally ask what beta. Draw the diagram. And they will not ask directly, they may ask this way. Draw the structure of the positive ion formed when acid is dissolved in water. Draw the structure of the positive ion formed when ammonia is dissolved in water. Achha, if I want to draw a hydroxide, how I'll draw? How do you get hydroxide? Water mein se what I will remove? One H I'll remove. So what I'll get? Achha, this hydrogen ka electron, it will leave on oxygen and go. So you get hydroxide or not? So look beta, can you see this? This was water or not? Tell me, water was having two lone pair or not? Tell me. So if you remove one H from this, what you are removing? One. So I am removing this H. कौन सा वाला H? See properly this. Only H. इसका इलेक्ट्रॉन इस पे ही छोड़ दिया. देख रहा है बेटा उसने? तो ये नेगेटिव बन गया कि नहीं? बोलो ना. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा. दिख रहा है? यहाँ पे लोन पेयर. एंड दिस इज नॉट लोन पेयर. व्हाई? बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड माइनस चार्ज. ओके. Only two lone pairs. Okay. Any difficulty here? Now beta, we are going to distinguish between what? Covalent and. अच्छा बेटा, मैं आपको बता देता हूँ ये सब भी जो भी मैंने बताया ना बेटा, ये देखो यहाँ पे बताया आप लोग. व्हाट डू मीन बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which do not normally take part in chemical reaction are known as what? Lone pair. Hey, name the term given to when both the electron comes from the same atom, then which bond? Coordinate covalent bond. Hey, name the term given in which electrons are shared what? Equally. तो which bond? लेकिन बेटा अगर मैंने LMNO, अगर मैंने ऐसा बोला रहता ब्ला 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 शेयर्ड अनइक्वली, तो क्या होता बोलो आंसर? हाँ, वेरी गुड. देन आंसर वुड हैव बीन व्हाट? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. आर यू गेटिंग इट? बोलो ना. इजी. राइट बेटा. ठीक है, लिखना ये है कि आपको याद रहेगा अभी अनइक्वली, वो मैंने आगे मार्क करवाया ना बेटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. ये चैप्टर में से एक तो बेटा आपको मैं बता देता, डायग्राम आता ही है. हाइड्रोनियम और अमोनियम में से एक पूछते हैं फिक्स. और वो स्टार्टिंग में आज हम लोग ने ये जो किया ना, इसमें से कोई भी एक पूछेगा बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे विल आस्क यू बेटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो डिस्टिंग्विश है ना बेटा, इसमें से गिव रीजन आएगा. क्या आएगा? गिव रीजन. चलो बेटा फटाफट ये गिव रीजन देख ले, मतलब ये देख लेते पॉइंट डिस्टिंग्विश. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में कौन होता था बेटा? अगर मैंने NaCl लिखा है तो NaCl में व्हाट आर हेल्ड टुगेदर? अरे नहीं, मतलब ये क्या था? आयन. तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर व्हाट बेटा? आयंस. कोवेलेंट में क्या होता था? Cl2O2. तो ये क्या था बोलो?
यूनियन ऑफ एटम, यूनियन ऑफ एटम को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। एग्जाम में पूछेंगे इन कोवेलेंट कंपाउंड विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, बोलो मॉलिक्यूल्स। इन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, आयन। अच्छा, आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो जनरली इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड विल बी इन विच स्टेट, सॉलिड। नमक हम लोग खाते हैं ना, नमक कौन से? NaCl, सॉलिड स्टेट में होता है बेटा, क्लियर है? कोवेलेंट कंपाउंड में बेटा क्या रहता है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स, ये नाम याद रखो, वीक। तो बेटा वीक फोर्सेस है तो जनरली कौन से फॉर्म में होगा? गैस या लिक्विड। अगर सॉलिड भी बनेगा तो सॉफ्ट सॉलिड। अच्छा, इन एग्जाम दिस क्वेश्चन दे विल आस्क यू व्हाई इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो व्हाट यू विल से? Because in electrovalent bond there is what? Strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. वो give reason मैंने दिए हुए बेटा, don't worry. The give reason why covalent compound Yesha, why covalent compound are gases or liquid or soft solid? Why? Because they have weak van der Waals forces between molecules. ये वर्ड याद रखने का, molecules, समझा ना? नेक्स्ट टाइम होमवर्क नहीं करके आना तो तेरे ऐसा मैंने पूरी बैंड बजा दूंगा, जाना। क्लियर है? हिप्नोटाइज कर दूंगा देखो। चलो बेटा, ए नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? व्हाट इज वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल का भी सुना है? अच्छा लड़कियों, आप लोग वो नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हो, तो अगर हाथ पे गिरेगा तो क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है। बॉयज अगर कभी आपने आफ्टर शेव वगैरह देखा रहेगा डैडी लोग को यूज करते हुए, अच्छा हाथ पे पेट्रोल डीजल भी अगर हम लोग हाथ में लेते हैं ना बेटा, तो क्या हो जाता है? इवा। जो आसानी से इवापोरेट हो जाता है उसको क्या कहते हैं? वोलेटाइल। जो आसानी से इवापोरेट नहीं होगा उसको क्या कहते हैं? पानी हाथ में लो इवापोरेट हो जाएगा क्या तुरंत का तुरंत? नहीं ना। ओके। खाने का ऑयल हम लोग लेते हैं, सिल पे लगाने का ऑयल, तुरंत इवापोरेट होगा क्या? अच्छा, तो नॉन वोलेटाइल का मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट। नॉन वोलेटाइल मीन्स, वोलेटाइल मतलब लो बॉय, अपना बॉडी का हीट इज इनफ फॉर देम टू इवापोरेट। गिव रीजन, नमक हाथ में लेगा तो इवापोरेट होगा क्या? नहीं ना। हाँ, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड अगर हम लोग लेते हैं, जैसे मैंने बोला ना एसीटोन, नो डीजल पेट्रोल, तो दे इवापोरेट बाय। तो आपको आंसर वही लिखना है, व्हाई इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर नॉन वोलेटाइल, बिकॉज इन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आयंस आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवेलेंट कंपाउंड में पूछेंगे व्हाई दे आर वोलेटाइल, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, देखो लेस एनर्जी, देखो तो आसानी से वो ब्रेक हो जाएगा एंड इवापोरेट हो जाएगा। क्लियर है? गिव रीजन why electrovalent compound are non-volatile or why they have high melting point and boiling point. We'll have to write strong electrostatic force of attraction between ions. Therefore, so more energy is required to break these strong forces of attraction. Right na beta? Why covalent compound are volatile or why they have low melting point? What do you have? This word should come. They have weak van der Waals force of attraction between molecules. Ions मत लिखना यहाँ पर. So less energy required. Okay. Covalent compounds are what? Good conductor of heat. Sorry, electrovalent. They are non-conductor. No. Acha. Covalent compound are good conductors of electricity, but in which state? Molten, aqueous, or fused state, but not in solid form. Not in खाली आप सॉलिड NaCl लो, अंदर दो वायर डालो, बल्ब लगाओ, बल्ब जलेगा क्या? करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? फ्री आयंस। क्या होना चाहिए? फ्री आयन। तो फ्री आयंस कब होगा? व्हेन इट इज व्हाट बेटा? व्हेन आई हीट इट एंड आई मेल्ट इट। क्लियर है? तो एग्जाम में याद रखना, दे आर गुड कंडक्टर इन विच स्टेट? मोल्टन और फ्यूज्ड, और इन विच स्टेट? एक्वेस। एक्वेस मतलब मैंने नमक को पानी में डाला, नमक को, तो Na+ और Cl- अलग हो जाता है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? राइट। ओके। एमसीक्यू में मैंने पूछा सॉलिड NaCl इज गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड NaCl बैड, सॉलिड में कभी नहीं होगा, याद रखना, सॉलिड नहीं होता है, नॉट इन सॉलिड स्टेट। क्लियर है? तो एग्जाम में लिखा रहेगा सॉलिड NaCl, मोल्टन NaCl, सो विच वन इज गुड कंडक्टर? मोल्टन। बाय सॉलिड में क्यों नहीं हो सकता है? सॉलिड में वाई? बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इन सॉलिड स्टेट।
बट मोल्टन और एक्वेस में क्या होता है भाई, इट इज अ गुड कंडक्टर बिकॉज ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आयंस आर फ्री या फ्री आयंस। क्लियर है? अच्छा, अभी आप बोलेंगे सर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होना चाहिए, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, लेकिन कौन से होते हैं बेटा, नॉन पोलर। कौन से वाले होते हैं, नॉन पोलर और नॉन कंडक्टर। एक्सेप्शन, व्हाट इज द एक्सेप्शन, पोलर। पोलर कोवेलेंट एंड आर गुड कंडक्टर। अभी जीत, वाई दे आर गुड कंडक्टर। जैसे बेटा अभी मेरे को बताइए, हेडफोन कॉल में HCl आता था कि नहीं, अमोनिया भी आता था कि नहीं। अच्छा, वो लोग फ्री क्यों होते हैं, वाई दे आर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा, मैं तुमको बता देता, चलो मैं लिख लेता हूँ। HCl को मैंने पानी में डाला, क्या डाला, तो क्या बनाएगा वो, अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, हाइड्रोनियम एंड। तो अच्छा, इसमें और स्टार्टिंग में आयंस थे क्या, अब क्या बना, फ्री आयंस बना के नहीं, दिख रहा है कि नहीं। स्टार्टिंग में क्या था, मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल से क्या बना, आयंस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। क्या कहते हैं, ओ गिव रीजन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आर गुड कंडक्टर इन एक्वस स्टेट। एक्वस में ही होगा, एक्वस पानी डालेंगे तभी बनेगा, व्हाई, बिकॉज दे अंडरगो व्हाट, आयनाइजेशन एंड प्रोड्यूसेस फ्री आयंस। क्लियर है? हेलो, नमक पानी में डिजोल्व होता है कि नहीं, बोलो। राइट, तो जनरली इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, बट कोवेलेंट कंपाउंड पानी में सोल्यूबल होगा क्या, ऑयल में दूंगा तेरे को, ऑयल इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, पानी में डिजोल्व होगा, नहीं होगा। तो ऑयल को अगर हम लोग के कपड़े में ऑयल का दाग लग जाता है, तो बेटा ऑयल किस में डिजोल्व होता है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड विल डिजोल्व इन व्हाट बेटा, ऑर्गेनिक। कोवेलेंट कंपाउंड विल डिजोल्व इन व्हाट, कोवेलेंट ओनली, कोवेलेंट विल डिजोल्व इन। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन भी है, क्या है, ये एक्सेप्शन, अमोनिया पानी में डिजोल्व होगा कि नहीं, HCl भी पानी में डिजोल्व होता है कि नहीं। हाँ, तो याद रखना ये एक्सेप्शन क्या है, बोलो, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर। अभी बेटा एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन, डिसोसिएशन एंड। चलो बेटा, ए आरुष बेटा, व्हेन आई राइट NaCl इट इज अ विच कंपाउंड, बोलो बेटा, इलेक्ट्रोवेलेंट। इसमें ऑलरेडी आयंस था कि नहीं, तो अगर इसको मैं डालूंगा तो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो गया कि नहीं। ए आयन डिसोसिएशन में क्या आता है, सुन लो अच्छे से साची बेटा, सब ये आयंस ऑलरेडी था अंदर, और अब ये क्या हो गया, तो सेपरेशन ऑफ आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट, ऑलरेडी इसमें आयंस था ना बेटा। क्लियर? अनायता आयनाइजेशन में क्या था, HCl क्या था, बोल बेबी, मॉलिक्यूल। वाटर भी क्या था, बोलो, मॉलिक्यूल। और दोनों कोवेलेंट है कि नहीं, बोलो, दोनों भी कौन से कोवेलेंट है, बोलो बेटा, नॉन पोलर, सॉरी पोलर, हेडफोन कॉल है ना दोनों में। अब इसको पानी में डालेंगे तो क्या बन गया, बोलो, अरे बोलो ना बेबी, क्या बन गया, आयन। तो व्हाट इज आयनाइजेशन, बोलो, फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम whom, which are not ionic। अब समझा, कोवेलेंट कंपाउंड अंडर को विच प्रोसेस, आयनाइजेशन। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड अंडर को विच प्रोसेस, समझ में आ गया, क्लियर है, बोलो ना। ये लिख लो वहां पर नीचे, लिखने का बेटा, ऐसा जब भी कुछ बताता हो तो याद रहेगा एग्जाम्पल। तो बेटा इसी के साथ ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। घर पे अभी जाके आपको क्या करना है, ये ईशा बेटा तू आगे का वाला स्ट्रक्चर करेगी, तू बाकी सब लोग पूरा जितना भी ये पेज में डायग्राम है फर्स्ट पेज पे, हाँ सारे, हाँ और पूरा पूरा, हाँ मतलब खाली डायग्राम, खाली डायग्राम, वो सब नहीं, खाली डायग्राम। ए भाई आराम। अच्छा बेटा मैं तुम लोग को बता देता हूँ, these girls और दिस अदर स्टूडेंट हु हैव कम हियर टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने उनको बताया, मैंने बोल नहीं किया था। देखो बेटा ना, ये क्या था, स्टोर करने में प्रॉब्लम होगा, मैंने हर एक चैप्टर के लिए ऐसा मैंने नोट्स दिया, उसी में से पढ़ना है एकदम बोर्ड बुकलेट, जितना मैं बोलता उतना ही करना है। मैंने ये पूरा एज पर द ICSE का स्कोप आता है उसमें से बनाया है, ठीक है ना बेटा।
उसी में से आता है ये बात। अभी अभी करंटली अभी जो 11 मार्च को एग्जाम दिया था पूरा मैंने जैसो जिस दिया था उसी में से आया था। अच्छा बेटा इसको है ना ऐसा फोल्ड करने का और बीच में ना ट्रांसपेरेंट टेप मार देना और पीछे भी ट्रांसपेरेंट टेप, सो इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। क्लियर है? और यू कीप वन फोल्डर वॉट एवर यू वांट, ट्रांसपेरेंट टेप मारने का बेटा। चलो डन डन डन। कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन पूछना है? राइट बेटा। अच्छा मैंने तुमको दोनों नोट्स दे दिया है बेटा। तू मेरे तेरे एक फेवर करेगी, तेरे तेरा घर पास में ही है ना, तो मैं तेरे को ना नोट्स दूंगा उन बच्चों का, नेक्स्ट क्लास में तू लेके आना। कौन कौन है अभी, कितने बच्चे बाकी रह गए बेटा? 4 ना? तुम्हारे वाले 4 बच्चे हैं ना? अच्छा मैं दे रहा हूँ तेरे को दोनों का, केमिकल बॉन्डिंग और नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट लेके आना। एक मिनट बेटा मेरे को ये बंद करने दो। यस यस। कौन सा व्हाइट बोर्ड? हम्म। हाँ ये वाला, ये ये नहीं नहीं बेटा, ये देख मेरे को, Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन लेता तभी जाके वो Fe2+ बनेगा ना बेटा। अच्छा अरे 3+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर से तो +2 बन से ना। अच्छा ये मैथ्स है, इसको अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो माइनस हो जाएगा कि नहीं? ऐसा आता है, इसके लिए मैंने पर्पस ले दिया। एनी डिफिकल्टी?